अपन डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में आपसे UMPU यूनिफॉर्मली मिनिमम अनवाइज्ड एस्टिमेटर, यूनिफॉर्मली मिनिमम variance unwise estimator. There are the three methods to calculate the UMB. One is the CR inequality. Other method is Rao-Blackwell theorem, and third is the Lehman-Shapley theorem. We already discussed with CR inequality to calculate the UMB estimator and CR lower bound of the variance. Today we discuss the Rao-Blackwell theorem and Lehman-Shapley theorem. Rao-Blackwell theorem. Rao-Blackwell theorem. It is Rao-Blackwell theorem. Rao-Blackwell theorem. Rao-Blackwell theorem. Rao-Blackwell theorem provide a method. Rao-Blackwell theorem provide a method to obtain. Rao-Blackwell theorem provide a method to obtain UMPUE from unwise estimator, from unwise estimator through the use of sufficient estimator. Through the use of sufficient estimator. फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा, जो Rao-Blackwell थ्योरम है, इट प्रोवाइड ए UMPU estimator use of unwise through sufficient estimator. Let Tx be any sufficient estimator for G theta. Let Tx be any sufficient estimator for G theta, and Ux be a unbiased estimator for G theta. Then we define a statistics such that estimator such that Ux कैसा एस्टिमेटर है, अनबाइस्ड. Tx कैसा है, सफिशिएंट. हमने इन दोनों को मिला के हमने एक नया एस्टिमेटर डिफाइन है, Ux. डेल टी का मतलब ये किसका फंक्शन है, दैट इज फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स. जा रहा है इसमें टी
It means this function should be function of sufficient statistic. लिखो first del t is a del t is a function of sufficient statistics. Del t is a function of sufficient statistics. Correct है बात? Second, del t is a unbiased estimator of del t is an unbiased estimator for g theta. इसका क्या मतलब है? करेक्ट है. तीसरा, del t is the del t is the UMPUE. Del t is a UMPUE for g theta if variance of del t is less than variance of ux. Variance of del t is less than variance of ux. क्लियर है? 3 पॉइंट रहे हमारे पास. क्या क्या पॉइंट रहे? पहला तो जो del t हमने ये जो डिफाइन किया है एस्टिमेटर, दैट एस्टिमेटर शुड बी del t is the function of sufficient statistics. Del t is a unbiased estimator और del t is the UMB estimator, है ना? तो any function of sufficient statistics is the conditional distribution निकालें और वो कैसा आ जाए, जिसका वेरिएंस मिनिमम आए, वो कैसा होगा? UMBU देगा. इसको अपन एक अदर फॉर्म में भी लिखते हैं. ये स्टेटमेंट है, इसको अदर फॉर्म में भी लिखते हैं. देखो, let x and y is let x and y be, third point, let x and y be two random variable such that let x and y are two random variables such that expectation of y is equal to mu और variance of y is equal to sigma square. ऐसे लिखा, mu y ये greater than 0. Expectation y given x is the phi x. Phi x. Expectation of phi x is equal to mu and variance of phi x is less than variance of 1. ये कैसी हो गई? x का फंक्शन है तो x क्या हो गया? सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स हो गया. x इज दी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स है और सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन कैसा होना चाहिए? अनवाइड होना चाहिए और इसका वेरिएंस वेरिएंस होना चाहिए. तो आप क्या कहेंगे? डेल x इज ए UMBUE of mu.
इसका क्वेश्चन करते हैं। ऐसे जनरल वे में अपन से ऐसे नहीं पूछता कि आप इसका यूएमपी, अपन से तो सिर्फ क्या कहता है इसका यूएमपी कैलकुलेट करो। ये से नहीं कहता कि हमें इस मेथड से ही कैलकुलेट करो। क्या चाहिए उसे? यूएमपी चाहिए, पर्टिकुलर मेथड के साथ हमें नहीं देता। हमें कोई से मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमारी चॉइस है। हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हमें चीजें पता होनी चाहिए, है ना। ऑब्जेक्टिव में दे दे राब ब्लैकवेल थ्योरम बेस्ड ऑन दी सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एंड अनवाइज्ड एस्टिमेटर, तो हमें यदि पता ही नहीं है, तो हमने थ्योरी पढ़ी नहीं है, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन करें, जैसे मान लीजिए मैं एक्स कहता हूं, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? हुँ? बर्नौली। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। फाइंड दी UMPUE, find the UMPUE for थीटा। ऑप्शन है ए एक्स बार, बी समेशन एक्स आई, सी एक्स एन, डी एक्स वन। एक्स टेक्स वैल्यू 0 एंड 1। करेक्ट है बात। अब इसमें कहीं भी उसने नहीं कहा है कि आप कौन सा मेथड यूज करें, मेरी चॉइस है। हम पिछले वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। पिछले वाला कौन सा मेथड था? सीआर इनइक्वालिटी निकालते तो कैसे करते आप इसको? डेल अपॉन डेल थीटा लॉग एल एक्स थीटा है इज इक्वल टू 1/λ टी माइनस डी थीटा। तो ये जो टी होता है ये क्या होता? यू एम बी। करेक्ट है ये वाली बात? करेक्ट है नहीं है? निकाल देते। हुँ? अब मुझे मान लीजिए हम दूसरा मेथड ट्राई कर रहे हैं, पर्टिकुलर दिया हुआ नहीं है, पर क्या करते हैं, फर्स्ट वी कंसीडर ए कौन सा एस्टिमेटर? अनवाइज्ड एस्टिमेटर। देन वी कंसीडर ए सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो इसका अनवाइज्ड एस्टिमेटर क्या होगा? लेट वी यूज राब ब्लैकवेल थ्योरम। लेट वी यूज राब ब्लैकवेल थ्योरम है। वाई या नहीं लिखें, वाई राब ब्लैकवेल थ्योरम क्या लिखेंगे? डेल टी डिफाइन करेंगे। डेल टी क्या होगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एक्स गिवन टी एक्स इज इक्वल टू टी। करेक्ट है? हुँ? तो लेट मैंने मान लीजिए एक यू एक्स लिया, यू एक्स की वैल्यू 1 इफ x1 इज इक्वल टू 1 और x1 इज इक्वल टू 0 अदरवाइज 0। एक ही ऑब्जर्वेशन ली x1, क्या ली? x1। इसका एक्सपेक्टेशन लें तो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एक्स क्या होगी वैल्यू? 1। प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी प्लस 0 x1 या नॉट इक्वल टू 1। कैसे निकालते हैं किसी का एक्सपेक्टेशन? कैसे निकालते हैं? उस पॉइंट पे वैल्यू, जैसे हम याद दिलाऊं आपको, याद दिलाएं कि अपन जो कहते थे, मान लीजिए 1/2 एक्स इज इक्वल टू 0 और 1।
तो क्या लिखूंगा, एक्स इज इक्वल टू 0 है इस पॉइंट पे 1/2 प्रोबेबिलिटी, ऐसे 0.0 इस पर प्रोबेबिलिटी, 0.1 इस पर प्रोबेबिलिटी, ऐसे हम डिस्क्रीट होता तो हम कैलकुलेट करते थे। यदि हम इसमें कैलकुलेट करें, जब हमारी 1 है वैल्यू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 रख दें यहाँ, ये क्या हो गया थीटा, और ये क्या हो गया 0, तो क्या हो गया ये थीटा, तो क्या कहोगे अनवाइज्ड है, यू एक्स इज दी अनवाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। करेक्ट है के बाद हमें कैसा एस्टिमेटर चाहिए, अनवाइज्ड होना चाहिए। करेक्ट है क्या। सेकंड हमें क्या चाहिए, सफिशिएंट, इसका सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या होगा, कैसे निकालोगे, सफिशिएंसी कैसे निकालोगे, इसका ये निकालेंगे तो ये जाएगा समेसन एक्स आई 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस समेसन, ये किसके बराबर होगा, और टी बराबर क्या ले लूं, समेसन सफिशिएंट। कौन सी थ्योरम लगाई, सफिशिएंसी निकालने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करते हैं, फैक्टराइजेशन थ्योरम। क्या यूज करें, फैक्टराइजेशन थ्योरम, सही है कि बात, फैक्टराइजेशन थ्योरम यूज करी, फैक्टराइजेशन थ्योरम के बेस पे सफिशिएंसी निकाली। ये मैं आपको इसको उतारना नहीं है, ये तो अपन ये नोट कर लिए यहाँ तक, तो आपको समझाने के लिए टी एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स आई इज दी सफिशिएंट एस्टिमेटर फॉर थीटा, सही है। देखो नोट नहीं किया क्या, टी एक्स क्या है, टी एक्स समेशन एक्स आई इज ए sufficient statistics for, करेक्ट बात, टी एक्स इज ए सफिशिएंट, तो डेल टी क्या होगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ यू एक्स, यू एक्स क्या है, समेशन एक्स आई इज इक्वल टू टी, क्या लेंगे 1 प्रोबेबिलिटी एक्स वन इज इक्वल टू 1 गिवन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू टी प्लस 0 प्रोबेबिलिटी एक्स वन इज नॉट इक्वल टू 1 समेशन एक्स आई इज इक्वल टू टी। करेक्ट है के बाद एक्सपेक्टेशन ऐसे ही निकालेंगे, पहले भी निकाला अब निकाला, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई 0, ये बच गया हमारे पास। इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी एक्स वन इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन समेशन एक्स आई इज इक्वल टू टी अपॉन प्रोबेबिलिटी समेशन एक्स आई इज इक्वल टू टी, ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये टर्म कहां से कहां तक है, करेक्ट है क्या वाली बात, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये एक्स वन है, एक्स आई नहीं, एक्स वन, तो एक्स वन इज इक्वल टू 1, और यहाँ एक ऐसे लिख दूं क्या, आई इज इक्वल टू 2 to n है, इज इक्वल टू टी माइनस 1,
ऐसे लिखा मैंने x1 x2 xn बराबर t। x1 की वैल्यू क्या है? तो 1 प्लस x2 प्लस xn बराबर t, या x2 प्लस x3 xn बराबर, देख सकते हैं कि नहीं? ये दोनों कॉमन है कि कुछ भी इनमें कॉमन है या नहीं है? ये वन वन इसमें है ही नहीं, अगले वाले में कॉमन नहीं, इंडिपेंडेंट हो गए ये दोनों। कैसे हो गए? इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट है तो क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे इंडिपेंडेंट है तो? x1 इज इक्वल टू तो 1 टू प्रोबेबिलिटी समेशन I इक्वल टू एंड xi इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन xi इज इक्वल टू t। कहाँ है हमारे पास x1 की वैल्यू? यहाँ 1 कहाँ है? यहीं तो है, इन दोनों में कॉमन है, इसलिए t1 की वैल्यू 1 लिया, नीचे तो नहीं लिया, नीचे तो पूरी वैल्यू है। यदि अपने यहाँ तक लिखो फिर आगे बात करते हैं, यहाँ तक नोट करें। यदि हम अपने पीडीएफ में x1 की वैल्यू 1 रख दें, पीडीएफ क्या है? थीटा की पावर x 1 माइनस थीटा की पावर x की वैल्यू 1 रख दें, क्या हो जाएगी ये वैल्यू? ये वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? बोलिए। हाँ, क्या रख दूं इसको? x की वैल्यू 1 रख दें, x1 कह लो x2 कह लो, सारा ही है, तो क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू लिख दें थीटा, ये वैल्यू तो रह गई थीटा। ठीक है। यदि आप x1 बर्नौली है, यदि x1 प्लस x2 करोगे क्या हो जाएगा? बाइनोमियल 2 थीटा। हम कहाँ से कहाँ तक कर दें? आई गोज टू 2 से लेकर n तक करें तो क्या आ जाएगा? बाइनोमियल n माइनस, इसको क्या कह रहे हैं हम? t माइनस 1 n माइनस 1 थीटा। तो क्या लिखोगे? n माइनस 1 t माइनस 1, n माइनस 1 n माइनस 1 t माइनस 1, थीटा की पावर t माइनस 1, 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 t माइनस 1, तो क्या जाएगा? n माइनस t। और नीचे कौन सा है? x बराबर t, तो बाइनोमियल है, क्या हो जाएगा? एन सी टी, थीटा की पावर t, 1 माइनस थीटा की पावर n माइनस टी, n माइनस टी से माइनस टी कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो डेल्टा टी क्या रह गया? n माइनस 1
t-1 अपॉन एन सी टी, ओपन करो, टी वाई एन का मतलब टी क्या लिया है हमने, टी क्या है अपने पास, समेशन एक्स आई अपॉन एन, क्या आ गया एक्स बार। तो एक्स बार इज दी यू एम बी यू फॉर थीटा, एक्स बार इज दी यू एम बी यू ऑफ थीटा। क्लियर है बात? यानी राव ब्लैकवेल थ्योरम कैलकुलेट करनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले एक अनवाइज्ड एस्टिमेटर लेना पड़ेगा, फिर एक सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालनी पड़ेगी, फिर उसका कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो हम बता पाएंगे कि क्या है वो यूएमबी है या नहीं। करेक्ट है की बात? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लेहमान चैफी थ्योरम। है नहीं, और जनरल वे में हम इस लेमन शेफी थ्योरम की यूज करते हैं यूएमबी निकालने के लिए, दोनों को कंबाइंड करके यूज करते हैं। हाँ ना, तो लिखिए इसको, लेट टी एक्स बी एनी, let Tx be any complete sufficient statistics for g theta. Let Tx be any complete sufficient statistics for g theta. And neta t be any function of complete sufficient statistics. Neta t be any function of complete sufficient statistics. Neta t is a unwise estimator. Neta t is a unique unwise estimator. Neta t is unique. Neta t is a unique unwise estimator for g theta. Then neta t is a UMPUE estimator of g theta. UMPUE of g theta. तो लिखिए, तो इसमें अगला पॉइंट लिखो, लेहमान-शेफी थ्योरम say that
every function of complete sufficient statistics. Every function of complete sufficient statistics is is a unique unbiased estimator for g theta, unique unbiased estimator for g theta, and its expectation is a UMPUE for g theta. UMPUE of g theta. Question. सिंपल वे में बात करें, जैसे आपसे अपन से UMPU पूछा जाए, क्या पूछा जाए? UMPU. देखो एक एग्जांपल, x follows normal mu sigma square. Find the UMPU of mu. Find the UMPU for mu. Option A, summation xi. B, x bar. C, x bar square. D, summation xi. पहले हम इसका क्या निकालें, एक कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन निकालें, फिर अपन उसका क्या ले लें, एक्सपेक्टेशन ले लें, और एक्सपेक्टेशन में जो हमें अनबाइस्ड वैल्यू दे वो हमारा क्या होगा, दैट वैल्यू इज द UMPU. तो देखिए एक तरीका है, हम इसको प्रूव कर लें कि इसकी कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए बेस्ट तरीका है कि ये जो एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर होगा दैट इज दी कंप्लीट एंड सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होती है. एनी मेंबर ऑफ एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. लग रहा है सुना हुआ सर? हाँ, क्या होता है? एफ एक्स थीटा. क्या है एफ एक्स थीटा? 1 सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई की पावर माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर. लॉग ले लिया. सही है. क्या लिख लें? माइनस लॉग सिग्मा माइनस लॉग 2 पाई माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर समेशन बोल रहा हूँ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, या एफ एक्स थीटा बराबर लॉग उधर ले जाएं तो इसको ऐसे लिख लें. क्या रह गया ये? और ये ऐसे लिख दें. दो बार एक्सपोनेंशियल लूंगा ना तो वैल्यू मल्टीप्लाई में आ जाएगी. दो बार लेंगे. इसको ओपन कर दें. क्या रह गया?
एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर प्लस 2x म्यू अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। देखो एक आपको मैंने लिखाया था एन आई थीटा तो एक्स आई माइनस ए थीटा और एच एक्स ऐसे लिखाया था। हुँ? तो इसके साथ जो अटैच है क्या कहोगे, समेशन एक्स स्क्वायर किसका है, सिग्मा स्क्वायर का। समेशन एक्स आई तो क्या कहोगे, सिग्मा स्क्वायर का। और समेशन एक्स किसका कहोगे, म्यू का। तो अपन जो कहते हैं समेशन एक्स आई एंड समेशन एक्स आई स्क्वायर, समेशन एक्स आई एंड समेशन एक्स स्क्वायर इज complete sufficient statistics for mu and sigma square. Summation xi and summation xi square is complete sufficient statistics for mu and sigma square. अब मुझे म्यू के लिए देखना है, हमें किसके लिए चाहिए, म्यू के लिए। तो म्यू के लिए क्या चाहिए मुझे, म्यू का कंप्लीट सफिशिएंटी क्या है, ये समेशन एक्स आई। तो अपन समेशन एक्स आई का क्या लें, समेशन एक्स आई सॉल्व करें, क्या जाएगा, क्या आएगा ये एन म्यू। सॉल्व करें तो क्या आएगा एन म्यू। हमें क्या चाहिए अनवाइज्ड एस्टिमेटर, तो अनवाइज्ड एस्टिमेटर क्या होगा एक्स आई अपॉन एन दैट इज म्यू। तो क्या कहोगे, ये कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन है और ये अनवाइज्ड है। कंप्लीट सफिशिएंट का फंक्शन हो और अनवाइज्ड हो वो क्या कहलाएगा, यू एम बी यू ई। करेक्ट है क्या, तो आप क्या कहेंगे एक्स बार इज ए यू एम बी यू ई ऑफ, क्या लिखूं जी थीटा, और जी थीटा की वैल्यू क्या ले लूं म्यू, जी थीटा की वैल्यू म्यू डाल दें। तो हमें पहले देखना पड़ेगा, जनरल वे में हम सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे और उसी के बेस पे सॉल्व कर लेंगे, उसको अनवाइज्ड निकाल लेंगे। हम क्या करेंगे उसी के बेस पे अनवाइज्ड निकालेंगे। जैसे इसी का सेकंड क्वेश्चन, देखो find the UMBUE of sigma square, find the UMBUE for sigma square when mu is, पहला केस mu is नॉन, इसका ए डाल दो, ये वाला सेकंड का ये mu is नॉन। ऑप्शन है आपके पास ए
म्यू इज नॉन, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर बी 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर सी 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर डी 1/n-1 समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अभी आपको पता होना चाहिए किससे अनवाइज्ड है सिग्मा स्क्वायर के लिए, जब नॉन है, जब नॉन है तो किससे अनवाइज्ड है ये? वन अपॉन नॉन है तो कौन सा आएगा? सी, नॉन है तो। ऐसे लिखो, लेट, जब आप नॉन है तो अपन लिखेंगे समेशन एक्स आई माइनस म्यू इज ए कंप्लीट सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स फॉर सिग्मा स्क्वायर। ऐसे लिख लोगे टी एक्स बराबर एक्स आई माइनस, ओके, तो इसका हम क्या ले लेंगे? एक्सपेक्टेशन लेंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ, इसकी वैल्यू हमें यदि लिखो टी एक्स इज ए यू एम पी यू ई ऑफ जी थीटा बराबर सिग्मा स्क्वायर इफ क्या हो जाना चाहिए? ठीक है, इसकी हम वैल्यू निकालें, एक्सपेक्टेशन समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दूं और सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। जब मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन गया? हुँ? का स्क्वायर। हमें एक्सपेक्टेशन किसका लेना है? इसका लेना है। तो इसके लिए क्या करूं मैं? इसमें सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं क्या? जब इसको मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्या है? का स्क्वायर विद 1। क्यों? ये समेशन कहां से कहां तक जा रहा है? तो ये क्या लिख सकता हूँ? एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर विद एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये क्या आ गया? सिग्मा स्क्वायर। क्या होता है का स्क्वायर का मीन? एक्सपेक्टेशन का मतलब मीन। क्या होता है का स्क्वायर का मीन? क्या आ गया? एन सिग्मा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? सिग्मा स्क्वायर चाहिए। तो क्या करूं मैं? यहाँ वैल्यू क्या आ गई? एन सिग्मा स्क्वायर। किसके बराबर है एन सिग्मा स्क्वायर? यहाँ क्या आ गया? एन। एन की जगह क्या कर लूं? यहाँ डिवाइड कर दूं। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसको यहाँ, ये वाला इक्वेशन है, इसमें मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? एल एच एस लिया, ये वैल्यू ली। इस वैल्यू में मैंने सिग्मा स्क्वायर से गुणा मल्टीप्लाई किया और सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड किया। कर सकता हूँ। सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है या नहीं है? कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया? बाहर आ गया। ये वाली टर्म को क्या कहते हैं हम? का स्क्वायर। ये मैंने का स्क्वायर लिख दिया। ये का स्क्वायर कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम? एन। इस एन डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये क्या हो गई वैल्यू? एन सिग्मा स्क्वायर। ये एन सिग्मा स्क्वायर किसके बराबर है? ऐसे लिखोगे समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर बराबर
एन सिग्मा स्क्वायर। हमें राइट में क्या चाहिए था, तो क्या करूं, एन को डिवाइड कर दूं। तो अनवाइज्ड एक्टिवेटर सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या रहा, समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन। तो क्या कहोगे, समेशन एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन एन इज यू एम बी यू ऑफ यू एम बी ऑफ सिग्मा स्क्वायर। ये लिख लीजिए। क्लियर। सेकंड इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड दी यू एम बी फॉर सिग्मा स्क्वायर, फाइंड यू एम बी ऑफ सिग्मा स्क्वायर व्हेन म्यू इज अननोन। ऑप्शन रिपीट कर लें। दैट टी एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज ए complete sufficient statistics for sigma square, complete sufficient statistics for sigma square। dx is a UMPUE of sigma square if क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाना चाहिए। यदि ऐसा आता है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। LHS ले लीजिए, पहले जो ऑपरेशन किया था वैसे ही करके दीजिए। क्या करें, अपॉन इंटू सिग्मा स्क्वायर। ये क्या बना, एक्स माइनस एक्स बार का अपॉन सिग्मा स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। इसको क्या कहोगे, काई स्क्वायर विद n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू सिग्मा स्क्वायर। इसका मतलब काई स्क्वायर का मीन, मीन क्या हो गया, n-1 सिग्मा स्क्वायर, n-1 सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखूं, क्या कर लें हम, n-1 से डिवाइड करें तो क्या लिखें, टी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन n-1 समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इज ए UMBUE ऑफ जी थीटा, जी थीटा इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर।
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का निकालो यूएमपी। क्वेश्चन है एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, e की पावर माइनस थीटा, थीटा की पावर एक्स फैक्टोरियल एक्स, एक्स टेक्स वैल्यू 0 1 2, find the UMPU of theta, find the UMPU of theta। देखो let dx is equal to summation xi, summation xi। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, लेमन से मतलब जो फैक्टराइजेशन थ्योरम है उससे सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, e की पावर माइनस एन थीटा समेशन की पावर एक्स आई प्रोडक्ट ऑफ एक्स आई, क्या जी टी थीटा में ये क्या आ गई, समेशन एक्स आई। एक्स आई इज दी क्या, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स, किससे निकाली, फैक्टराइजेशन थ्योरम से। तो आप क्या कहेंगे, समेशन एक्स आई इज ए कंप्लीट sufficient statistics for theta। ओके वाई राव ब्लैकमेल एंड लेमान शेफे थ्योरम, RBLS राव ब्लैकमेल एंड लेमान शेफे थ्योरम, dx is a UMPUE of theta if क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई किसकी इक्वल आ जाए, थीटा के। देखिए ये थीटा के बराबर है क्या, ये किस वैल्यू के बराबर है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई, क्या लिखेंगे, समेशन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई, आई गोज टू 1 to n, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, थीटा। क्या रहा ये, हमें क्या चाहिए, थीटा, तो क्या करें, एन से डिवाइड कर दें, तो क्या आप क्या कहेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू थीटा, तो क्या कहेंगे, टी एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इज ए यू एम बी यू ई फॉर, तो ये हमने बात की आपसे यू एम बी यू की कहानी है ना। कल अपन आपसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मेथड, हम मेथड टू ऑब्टेन दी एस्टिमेटर, 4 मेथड से हम एस्टिमेटर निकालते हैं, उन मेथड पे अपन कल डिस्कस करेंगे, कल से चालू करेंगे।